पंजाब में नेशनल हाईवे के ऊपर एक टैंकर को की आग लग गई। नेशनल हाईवे के ऊपर अचानक इसमें आग लग गई और इसके जो चालक और सह चालक थे वो शायद वहां से उन्होंने कूद कर अपनी जान बचाई है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। पंजाब में नेशनल हाईवे के ऊपर एक टैंकर को, ऑयल टैंकर को सुनने में आया कि आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें 100 मीटर तक दिखाई दे रही थी, इतनी भयानक आग थी। और सुनने में आया ये जो टैंकर था ये डीजल का टैंकर था, क्योंकि आप जानते हैं कि हिट एंड रन जो कानून नया बनाया जा रहा था उसके चलते ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल की हुई थी। उससे पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज हो गई थी। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं मिल रहा था, डीजल नहीं मिल रहा था। और ऐसे में जैसे ही हड़ताल खुली तो डीजल की जो और पेट्रोल की जो आपूर्ति थी उसे पूरा करने के लिए ये टैंकर जो था वो लुधियाना से, सुनने में आया है कि ये टैंकर जो था वो लुधियाना से अंबाला की तरफ जा रहा था। और ऐसे में नेशनल हाईवे पर खन्ना में नेशनल हाईवे के ऊपर अचानक इसमें आग लग गई और इसके जो चालक और सह चालक थे वो शायद वहां से उन्होंने कूद कर अपनी जान बचाई है। लेकिन ये हैरान करने वाली घटना है। इसकी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग बुझाई है। क्या कुछ कह रहे हैं वहां के लोग, पहले आपको सुना देते हैं, फिर इसकी पूरी जानकारी आपसे साझा करते हैं। ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਫਾਇਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਖੰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲੀ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਨੰਬਰ ਮਿਟੇ ਹੋਏ। ਕੀ ਲੋਡ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਡੀਜ਼ਲ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ? ਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਕੈਰੋਸਿਨ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਹੀ ਅਰਾਊਂਡ 12:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਖੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਟੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕਰ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੇ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਆਇਲ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੇ ਫਲੇਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਵੈਂਟ ਅਪ ਇਨ ਫਲੇਮਸ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਟ ਅਪਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਸ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਏ ਸੀਗੇ ਲੱਕੀਲੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਖੰਨਾ ਦੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਸ ਹੈ। ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਸਐਮਓ ਖੰਨਾ ਦੀ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਰਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਥ ਆਰ ਸਟੇਬਲ ਐਂਡ ਥੋੜੀ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੰਗ ਹਾਈਵੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਵ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਔਰ ਹੁਣ ਕ੍ਰੇਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਸ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ। तो तस्वीरें आपने देखी, तो लोग यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें और लोग जो कह रहे हैं वो भी बातें जो है वो कह रहे हैं कि अचानक आग लग गई, काफ़ी भयानक आग थी, लोग भी घबराए हुए हैं। लेकिन इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सन्नी कुमार हैं चंडीगढ़ से। सन्नी जी सर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ ये जो आग जनी की घटना हुई है, जो डीजल टैंकर में आग लग गई है, इसकी क्या जानकारी है? जी दीपक जी, ये पंजाब नेशनल हाईवे पर ये आग लगी है। लगभग ये 12:30 बजे की घटना बताई जा रही है, दोपहर की घटना है ये। ये अचानक डिवाइडर रोड से टकराया और अचानक पलट गया ये, और ड्राइवर चालक टैंकर डिवाइडर के साथ टकराया जाकर पहले। ये सर कह सकते हैं कि शायद जानवर आ गया हो यहाँ पे,
या ओवरटेकिंग के कारण भी हो सकता है ये हादसा। ये पुष्टि तो नहीं हो पाई है कि ये कैसे पलटा टैंकर और कैसे इस पे आग लग गई। बता दें कि इसके जो 12:30 बजे से लेकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 6 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की इस टैंकर को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगाई गई थी सर जी। और मौके पर एसएसपी भी वहां पर पहुंच गए थे, डीएसपी भी वहीं पे थे मौके पर और जायजा लिया जा रहा है कि ये कौन सी कंपनी का टैंकर था। वो अभी भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्योंकि जलकर राख हो चुका है टैंकर। अच्छा, पूरी तरह से राख हो गया है। और वहां पर किस तरह से, क्योंकि आग की लपटें तो काफी भयानक दिख रही हैं, किस तरह से इस आग पर काबू पाया दमकल विभाग ने और कितना समय लगा? दमकल विभाग की गाड़ियां कई मंडी गोविंदगढ़ से भी ले गई और समराड़ा से भी और खन्ना से भी, मतलब दमकल विभाग की 6 से 7 गाड़ियां वहां पर इस आग बुझाने के लिए, टैंकर को बुझाने के लिए लगी हुई थी मुस्तैदी से जी। मगर बता दें कि इसमें जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है। जो चालक और सह चालक थे, ड्राइवर और कंडक्टर, वो कहाँ गए? वो सर उन्होंने अपनी जान कूद कर जान बचाकर, मगर वो बता दें कि जख्मी हुए हैं, थोड़े से मामूली सी चोटें आई हैं, उससे जला हुआ है हाथ भी। ये मौके पे एसएसपी ने भी एक बयान जारी किया मीडिया से जब प्रेस वार्ता हुई वहीं पर मौके पर, तो उन्होंने ये जानकारी साझा की है कि वो थोड़े से हाथ जले हैं उनके भी, मेरे ख्याल ये मौके पर एसएसपी ने जानकारी मीडिया से साझा की है। अच्छा, मतलब उनको अस्पताल एडमिट करवाया गया है? हाँ जी, हाँ जी, मौके पर अस्पताल, निजी अस्पताल में उनको लेके गए हैं। कोई और जानकारी कोई? नहीं सर, दीपक जी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि आपने भी जैसे बताया कि दीपक जी ये पेट्रोल की किल्लत आने के कारण भी ये हादसा हो सकता है कि जल्दबाजी के चक्कर में भी ये हादसा हो सकता है। प्रेशर डाल रहे होंगे इन चालकों के ऊपर कि जल्दी से जल्दी पेट्रोल डीजल जो है वो पेट्रोल पंपों पर पहुंचाया जाए, इसलिए ये हो रहा था। जी दीपक जी, जी जी। और ये क्या ये लुधियाना से अंबाला जा रहा था टैंकर? दीपक जी, ये कह सकते हैं कि नेशनल हाईवे मंडी गोविंदगढ़ की रोड से जा रहा था। अभी ये पुष्टि तो नहीं हो पाई है कि लुधियाना से अंबाला जा रहा था कि ये किस जगह पे पहुंचना था। ये अभी तुरंत तौर पर पुलिस द्वारा भी नहीं बताया गया और ना अभी ड्राइवर चालक से भी बात नहीं हुई पाई है। जैसे भी ड्राइवर चालक से बात होती है तो उसके बारे में आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये देखें कितनी भयानक आग जो थी, ये जैसे ये जानकारी दे रहे हैं सनी जी की टैंकर शायद स्पीड ज़्यादा थी, उसे वो कंट्रोल नहीं कर सके और फिर ये टैंकर जो है वो वहाँ पर पलट गया और पलटने से इस टैंकर में आग लग गई। चालक और सह चालक ने कूद कर अपनी जान बचाई और उन्हें एडमिट करवाया गया है, लेकिन ये आग इतनी भीषण लगी थी कि इसे कंट्रोल पाना भी काफ़ी मुश्किल था और लोगों में हड़कंप सा वहाँ पर मच गया था। लगभग 100 मीटर के दायरे में लोगों को उसकी लपटें दिखाई दे रही थी, इतनी भीषण आग ये इस टैंकर में लगी थी। और ये घटना जो है पंजाब के खन्ना नेशनल हाईवे पर हुई है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।